सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सर्टेन पोस्टुलेट पढ़ेंगे अपन। वो पोस्टुलेट जो अपन को फॉलो करना है टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ideal gases or related to the concept of ideal gases. All gases are made up of. All gases are made of tiny particles. Particle called molecules. तो सभी गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब दे आर टाइनी पार्टिकल्स यू कैन से, है ना। दूसरा, इन आइडियल गैसेस द वॉल्यूम ऑफ gas particle, gas molecule compared to the volume of vessel is negligible. So molecule is negligible as compared to volume of vessel. As compared to volume of vessel. मतलब we have to assume that the size of the molecule is nearly zero. There is no force of attraction or repulsion between the gas particles. There is no force of attraction or repulsion between the gas molecules. Or repulsion between the gas molecules. मतलब we'll say that कि भाई there is no forces among the gas molecules. Ideal gases में gas particles के बीच में कोई forces को assume नहीं करते. The collision between the gas particles ना, मतलब जब कोलाइड करते हैं दो गैस पार्टिकल तो उनमें कोई एनर्जी ना तो लॉस्ट होती है ना गेन होता है, मतलब उनमें कंप्रेशन वगैरह टाइप का कुछ नहीं होता कि जैसे दो रबर बॉल अगर कोलाइड करेंगे थोड़ा तो कंप्रेशन होगा, लेकिन अगर दो स्टील बॉल आपस में कोलाइड करेंगे तो कोई कंप्रेशन एक्सपेंशन या कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा. तो द कोलिजन अमंग मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक. Among gas molecules, molecule is perfectly elastic. So there is no loss of energy or gain of energy due to the collisions. That is what we mean by the perfectly elastic. Gas molecules are independent of gravitational force. Are independent of gravitational force. Of gravitational force. So all the gas molecule will be independent of gravitational force. The kinetic energy of gas molecules. Of gas molecules in ideal gas is directly proportional to the temperature of the gas sample. That will be directly proportional to the gaseous sample. So kinetic energy will always be directly proportional to temperature. अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल के पास ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रैंडमली मूव कर रहे होंगे पार्टिकल्स. So we'll say that kinetic energy is directly proportional to temperature. So these are the postulate of the gases. गैसेस छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, उनको अपन मॉलिक्यूल्स कहते हैं. वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है as compared to volume of vessel. There is no force of attraction. There is no forces among the particles in ideal gas. Collision is perfectly elastic. मतलब जो आपस में कोलाइड करेंगे तो neither energy will be lost nor it will be gained. The molecules are independent of the gravitational force. So ऐसे नहीं होता सारे पार्टिकल जाके स्टिक हो जाएंगे.
अर्थ पे स्टिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और द काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू पेटी जी, kinetic theory of gases, the Boyle's law is, Boyle's law अगर अपन चेक करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ। सो पीवी विल बी इक्वल टू 1/3 mn v square according to Boyle's law, according to the KTG, the Boyle's law is equal to this। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया आपको, बट मैं आपको डेरिवेशन भेजूंगा। तो फिजिक्स में तो है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स ना, फिजिक्स में तो इसका डेरिवेशन भी है बॉयल्स लॉ का। मैंने आपको बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप फिजिक्स में ही पढ़ोगे, बट फिजिक्स में उसका डेरिवेशन है, केमिस्ट्री में नहीं है उसका डेरिवेशन। बट केमिस्ट्री में आपको शीट में भी मिल जाएगा उसका डेरिवेशन, क्योंकि फिजिक्स में तो होता ही है। और कुछ क्वेश्चंस भी मैं भेज सकता हूँ ये केटीजी वगैरह के, वो भी आप देख सकते हैं। सो इधर में इसमें ये तो प्रेशर वॉल्यूम है, दिस इज इक्वेशन 1 फॉर अस। Where P is pressure, V is volume, we know that. M is mass of one molecule. N is number of molecules. And C is that is V is the velocity of gas molecules. Is velocity of gas molecules. So V is the velocity of gas molecules. If we write that, if mass of one molecule multiplied by Na, or we can write that as if n जो है आपके पास नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, n इज इक्वल टू Na के बराबर ले लेते हैं, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो मैं ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, तो वन मॉलिक्यूल के मास को अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो दैट बिकम्स मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है और उसको मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो नंबर से तो इट बिकम्स मॉलिक्यूलर मास। देन वी कैन से दैट m into n will be equal to molecular weight of the gas। तब अपन इसको molecular weight of the gas बोल सकते हैं। Then in that case I can write that PV will be equal to 1/3 m the molecular mass of gas and v square। ये लिख सकता हूँ। Then I can write that PV will be equal to 1/3 m v square। ये इक्वेशन अपन PV is equal to 1/3 m and v square को याद रख लेते हैं, क्योंकि फिर उसका डेरिवेशन फिजिक्स में है, जैसे मैंने आपको बताया केमिस्ट्री में उसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने किया। सो प्रेशर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दिस। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, PV विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू m इंटू v स्क्वायर। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, इंटू 2 डिवाइड बाई 2 कर देता हूं। तो अपन इसको लिख सकते हैं दैट इज PV इज इक्वल टू दैट इज 1/2 इंटू mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ना, ऐसे लिख देते हैं। तो हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी लिखा। And PV will be equal to nRT, we know that. So since we are using the molecular mass, so mass will be 1 mole because ये number of moles अपन 1 ले रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं that is RT will be equal to 2/3 into kinetic energy, since we know that PV is equal to nRT। तो आप इसको ऐसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में अपन मॉलिक्यूलर मास अपन n को 1 मोल ले रहे हैं तो अपन को पता है फिर 1 मोल हो जाएगा। सो आई कैन राइट दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 nRT। वी कैन राइट दिस काइनेटिक एनर्जी
for the gaseous sample. ये मेरे पास इक्वेशन 2 है. For kinetic energy will be equal to 3/2 RT for 1 mole of a gas. For 1 mole of a gas, अपन लिख सकते हैं इसको for 1 mole of a gas. तो that will be the kinetic energy for 1 mole of a gas. और अगर हमको एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो for 1 mole of a gas, अगर मुझे एवरेज काइनेटिक एनर्जी for 1 mole of a gas, तो ये तो 1 मोल का एनर्जी है, तो अगर मुझे एवरेज मतलब एक मॉलिक्यूल का एनर्जी चाहिए तो इसको किससे डिवाइड कर लूंगा, Na से डिवाइड कर लूंगा. तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 R by Na into T कर देता हूं. So this will be called as average kinetic energy for 1 mole of a gas. This is equation 3. Equation 4, so average kinetic energy for 1 mole of a gas. For 1 mole of gas. Mole of gas, अपन ऐसे लिख सकते हैं. The average kinetic energy for 1 mole of a gas लिख सकते हैं अपन. Then I can write that. इसमें अपन लिख सकते हैं where R by Na is equal to K. अपन R by Na को K लिख लेते हैं, नया कांस्टेंट, बिकॉज दोनों ही कांस्टेंट है. जो K होता है वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. K स्मॉल k लिखा मैंने, that is called Boltzmann constant, where K is Boltzmann constant. Is Boltzmann constant. Constant. तो मैं R by Na को Boltzmann constant लिख लूंगा, और अगर उसका वैल्यू लिखना है तो मैं R को लिख सकता हूं 8.314. अपन K का वैल्यू लिख सकते हैं इधर. वैल्यू ऑफ K will be equal to R by Na. R होता है that is 8.314 joules per mole per calorie, और मैं इसको लिख लेता हूं 6.023 into 10 to the power of 23. So this I got that 1.33 into 10 to the power of minus 23 joules per mole per calorie. This will be the value of K, that is called Boltzmann constant. So मैं इसको 3/2 kT भी लिख सकता हूं kinetic energy को. So the average kinetic energy for 1 mole of a gas is equal to 3/2 kT लिख सकते हैं. That is for 1 mole of a gas, average kinetic energy. इसको अपन इक्वेशन 5 लिख सकते हैं. अपन कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं. द काइनेटिक एनर्जी, जो अपन ने यहां पर काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी? So the kinetic energy or average kinetic energy, अपन ऐसे लिख सकते हैं, average kinetic energy or the kinetic energy what we have calculated can be called as translational kinetic energy. Can be called as translational kinetic energy. Can be called as translational kinetic energy. अभी ट्रांसलेशनल का मतलब होता है लीनियर मोशन. That is energy related to the linear motions. Actually what happen, गैस पार्टिकल जब मूव करते हैं तो वो स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं.
So the energy related to the motion of particle in the straight path is called translational path. तो उसको हम ट्रांसलेशनल, क्योंकि गैस सैंपल में पार्टिकल कभी भी कर्व में मूव नहीं करेंगे, दे विल ऑलवेज मूव इन द स्ट्रेट डायरेक्शन. So motion in a straight direction is called translational motion. It can only occur in gases. भाई सॉलिड्स में तो there cannot be a translational motion. सॉलिड्स में थोड़ी पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं. सॉलिड्स में तो we know that in solids there is, सॉलिड में कौन सा एनर्जी होता है? तो अपन कहेंगे वैसे सॉलिड्स की एनर्जी तो सबसे कम होती है, लेकिन अगर हमें सॉलिड्स में एनर्जी बताना है तो मैं सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी बताऊंगा, क्योंकि सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग होता है. अगर क्लोज पैकिंग होगा तो पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन मूव नहीं कर सकता. एंड ड्यू टू दैट वाइब्रेशनल एनर्जी एट इट्स पोजीशन, सॉलिड्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज. तो अपने ही पोजीशन पे वो वाइब्रेट कर सकते हैं सॉलिड्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. भाई रूम टेम्परेचर पे अगर अपन चेक करेंगे तो एल्यूमिनियम को मेल्ट करना है तो टेम्परेचर डिफरेंट देना पड़ेगा एज कंपेयर टू आयरन के. व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम पार्टिकल्स विल बी मोर एट अ रूम टेम्परेचर देन आयरन. सो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि पार्टिकल ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहा है. अगर पार्टिकल ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहा है तो अपन थोड़ा और हीट देंगे तो मेल्ट ही हो जाएगा. लेकिन जिसका वाइब्रेशन स्लो होगा उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, फिर वाइब्रेट करेगा, फिर मेल्ट करेगा. तो सॉलिड्स हैव वाइब्रेशनल एनर्जी. सो देयर इज वाइब्रेशन. तो लिक्विड्स में क्या होता है? इन लिक्विड्स हैव वाइब्रेशनल एज वेल एज रोटेशनल. मतलब लिक्विड्स में क्या होता है? पार्टिकल वाइब्रेट भी करते हैं और रोटेट भी करते हैं अपनी पोजीशन पे. वो वाइब्रेट करने के साथ साथ रोटेट भी करेंगे अपने पोजीशन पे. सो पार्टिकल इन राइट, कोई भी पार्टिकल जो लिक्विड्स में प्रेजेंट होंगे, दे विल वाइब्रेट ऑन देयर पोजीशन एज वेल एज दे विल आल्सो रोटेट. सो दे हैव वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी. सो वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे इन अ लिक्विड, दे विल, एटम तो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे इन अ मॉलिक्यूल, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल रोटेट भी करेगा उसमें. ना देखा होगा जैसे लिक्विड में कभी मूवीज में दिखाते हैं किसी सॉल्यूशन में ऐसे वो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर मूव कर रहे होते हैं इन अ लिक्विड. दैट्स व्हाई वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल एनर्जी. एंड इन गैसेस ऑब्वियसली बात है, उसमें तो पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं स्ट्रेट पाथ पे. तो गैसेस पार्टिकल वाइब्रेट भी करेंगे अपने पोजीशन पे, रोटेट भी करते हैं, और रोटेट करने के साथ साथ वो मूव भी कर रहा होता है. ऐसे जैसे अर्थ मूव करता है ना भाई, अर्थ का तो ऐसे इलेक्ट्रिकल पाथ होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगा और मूव भी कर रहा होगा. सो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहेगा तो रोटेशनल एनर्जी हो गया, और वो आगे भी जा रहा होगा तो ट्रांसलेशनल भी हो गया. तो गैसेस में वाइब्रेशनल एनर्जी भी होता है, रोटेशनल भी होता है, और ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होता है. इसलिए अपन ने इसको सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी बोला, अपन ने वाइब्रेशनल और रोटेशनल नहीं बोला. बिकॉज गैसेस कैन हैव ट्रांसलेशनल एनर्जी बट नॉट द रोटेशनल और वाइब्रेशनल. सो वी कैन राइट दैट दिस इज अ, मतलब ये जो आप लिख रहे हो काइनेटिक एनर्जी, इसमें कहीं भी मैं ट्रांसलेशनल वर्ड भी यूज कर सकता हूं. दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल ऑफ अ गैस, translational kinetic energy for right, that is for 1 mole of a gas, translational average translational energy for 1 mole of a gas, like that. दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं. हाँ बोलो सर. रोटेशनल एनर्जी फिर से बताइए ना. नहीं सर, रोटेशन में पार्टिकल्स आपस में जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो पार्टिकल ना ऐसे जैसे H2O है, तो अब इसका एक प्लेन भी होगा, बेंट स्ट्रक्चर है, तो ये ना अब वीक बॉन्ड से ऐसे अटैच होते हैं ना,
तो ये मॉलिक्यूल आपस में ऐसे रोटेट भी होते रहते हैं सोल्यूशन में, मतलब रोटेट होने के साथ साथ वाइब्रेट भी होते हैं। तो एटम अपने पोजीशन पे वाइब्रेट होते रहेंगे और मॉलिक्यूल पूरा ऐसा रोटेट होता है। पानी अपने आप हमको पता है वो शांत हमको लगता है, लेकिन नीचे वो रोटेट होता रहता है। भाई किसी भी पॉन्ड में इवन अ स्टेबल वाटर, अपन को दिखता है कि वाटर स्टेबल है, वो स्टेबल नहीं होता, नीचे रोटेट होता है वाटर। इवन इन अ ग्लास, अगर आप एक ग्लास, कांच के ग्लास में पानी भर के रखोगे और उसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ कचरा वगैरह है तो आप देखोगे ऊपर से तो आपको लग रहा है पानी स्टेबल है, लेकिन अंदर वो रोटेट करता रहता है। वो कचरा जो होगा रोटेट करता रहेगा। अगर उसका मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे बैठ जाएगा, वरना वाटर रोटेट होता रहता है। इट इज रोटेशनल एनर्जी, क्योंकि उसको कम एनर्जी चाहिए रोटेट करने के लिए। तो वाटर में दोनों टाइप का एनर्जी होगा, रोटेशनल भी होगा और वाइब्रेशनल भी होगा, क्योंकि अगर एटम्स हैं मॉलिक्यूल में तो वाइब्रेशन तो होगा ही होगा एटम्स के बीच। ठीक है, सो दैट विल बी अ रोटेशनल एनर्जी आल्सो। अब अगर दो गैसेस है, एक सपोज करते हैं हीलियम गैस है और एक CO2 गैस है, तो एक गिवन टेम्परेचर पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मेरे पास हीलियम है और CO2 है, तो रूम टेम्परेचर पे किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, हीलियम की या CO2 की? तो क्या बोलेंगे अपन? तो अपन कहेंगे सर आप तो ना इसमें देख लो भाई किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ये है काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो अपन कहेंगे इसमें ना तो मैं, मुझे कहीं ऐसा कोई डाटा दिख रहा है जिसमें मैं हीलियम को ऐड करूं या फिर मैं किसी को CO2 को ऐड करूं, मतलब मॉलिक्यूलर मास से इंडिपेंडेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो अपन कहेंगे द काइनेटिक एनर्जी फॉर टू डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास और एनी factor which depends on the nature of gas. So at constant temperature, at given constant temperature, same temperature ले देता हूं मैं, at same temperature the two different gases will have same kinetic energy irrespective of their mass. Example, helium and CO2 have same kinetic energy at 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, किसी भी टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम irrespective of the nature of gas. इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि गैस कौन सा है। So irrespective of the nature of gas. Third point we can write is, अगर मैं दो डिफरेंट गैसेस को मिक्स करता हूं एट डिफरेंट टेम्परेचर, मैं दो डिफरेंट गैसेस को मिक्स करता हूं एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड विद डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आप दो अलग अलग गैसेस को डिफरेंट मोल्स और डिफरेंट टेम्परेचर पे मिक्स करने वाले, तो मिक्स करने के बाद व्हाट विल बी द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सैंपल? So I will write that when two different gases at different temperature and number of moles are mixed, then their average kinetic energy, total kinetic energy और टेम्परेचर, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो टेम्परेचर भी आ जाएगा, मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ले लेता हूं। सो काइनेटिक एनर्जी टोटल
वही इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा या टेम्परेचर टोटल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल will be equal to kinetic energy of gas 1 plus kinetic energy of gas 2। वो अपन ऐड कर लेंगे। 3/2 और R तो कांस्टेंट है ना, सो आई विल राइट हियर 3/2 n टोटल मतलब n1 plus n2 हो जाएगा n टोटल, R T टोटल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3/2 n1 R T1 plus 3/2 n2 R T2, where n total is n1 plus n2। कैलकुलेट कर दे, 3/2 को तो कैंसिल कर लेते हैं, 3/2 और R तो कैंसिल हो गया, 3/2 and R तो कैंसिल हो गया। So we got that what will be the average temperature, the temperature of the mixture will be equal to what? So we got the temperature of the mixture as, so temperature of the mixture will be equal to, that is N1 T1 plus N2 T2 divided by N1 plus N2, and total is N1 plus N2, that will be the answer। तो इस वाले पार्ट में जो अपन गलती कर सकते हैं वो होगा, क्योंकि या तो अपन को क्वेश्चन इससे पूछेंगे या फिर अपन को क्वेश्चन यहां से भी इनसे पूछेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब दीज आर द पॉइंट वेयर जहां से अपन से क्वेश्चन पूछे जाए। एक तो ये इक्वेशन अपन को पता होना चाहिए, दूसरा ये इक्वेशन अपन को पता होना चाहिए, और थर्ड के तो अपन ऑब्वियसली बात है वो अगर पता होगा तो के अपने आप ही कैलकुलेट कर पाएगा। एक ये इक्वेशन है जिससे कि अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये पार्ट अपन को पता होना चाहिए। अब इस पार्ट में अपन गलती क्या कर सकते हैं, तो वो होगा यूनिट्स। सबसे ज्यादा गलतियां यूनिट्स में करोगे आप, और जब आंसर अभी भी आप यूनिट्स में ही गलती कर रहे होगे, अगर आपका कहीं आंसर नहीं आ रहा है तो 50% गलती आप यूनिट में कर रहे होगे, ये आप देख सकते हो। इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपसे बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिमाग चलाना पड़ेगा। केमिकल बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो वही सीख रहे थे ना जो मैं बता रहा था, लेकिन अभी आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। अब दिमाग चलाना पड़ेगा तो गलतियां, एक तो दिमाग चलाना पड़ रहा है और फिर यूनिट भी ध्यान रखो, और गलतियां मतलब कैलकुलेशन भी मत करो, तो ऑब्वियसली बात है एक साथ काफी सारी चीजें आएंगी तो प्रॉब्लम तो जाएंगी। यूनिट्स की अगर अपन बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा था हम सारे कैलकुलेशन एमकेएस यूनिट में करेंगे। मैंने आपसे कहा था अपन सारे कैलकुलेशन हमेशा एमकेएस में यूनिट में किया करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो फिर अपन चेंज करेंगे। एक तो अपने पास गिवन होगा भाई पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर लिया, सी इज वेलोसिटी, वी स्क्वायर। प्रेशर को आपको पास्कल में लेना पड़ेगा, वॉल्यूम को आपको मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, मास आप केजी में लोगे, एन का यूनिट नहीं होगा क्योंकि वो नंबर्स है, तो वेलोसिटी आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा यूनिट गिवन है तो कन्वर्ट करो, अगर कोई दूसरा यूनिट गिवन है तो आप उसे कन्वर्ट करो। दूसरा 3/2 kT, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। अब वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वाइस वर्सा इस इक्वेशन में। अब आप अगर इसको जूल्स में लेते हो तो R का वैल्यू जूल्स में लेना पड़ेगा, अगर ये कैलोरीज में है तो R का वैल्यू कैलोरीज में लेना पड़ेगा आपको। भाई आपने लिखा यहां पर, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, इधर मैंने किलो जूल पर मोल लिख लिया, मैंने एमकेएस यूनिट ले रहा है, एमकेएस यूनिट मतलब जूल्स होता है, तो मैं जूल्स पर मोल ले लूंगा एमकेएस यूनिट में। बट अगर मुझे जूल्स पर मोल गिवन है तो मैं ऐसे लिखूंगा 3/2 R हो जाता है क्या 8.314 जूल्स पर मोल पर कैलोरी।
मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर तो अपने केल्विन में होता है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है भाई जूल्स। हाँ। अगर ये किलो जूल्स में है तो आपको इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इसको जूल्स में कन्वर्ट करो। मतलब आप यूनिट्स का ध्यान रखो तो फिर गलती नहीं होगी। बिकॉज बाकी तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चंस इससे पूछेंगे, इससे पूछेंगे, इससे पूछेंगे, इसमें सिर्फ एनए से रिवाइज किया है। और ये आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा एनर्जी, इसको काइनेटिक एनर्जी की जगह अपन से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। तो वो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशनल क्यों लिख रहे हैं, because gases have only gases have translational kinetic energy, and that is the energy related to the linear motion of the particles. तो ये पार्ट अपन को यूनिट्स वाला पार्ट पता होना चाहिए, तो आपसे गलती नहीं होगी। मैं आपको एक आध क्वेश्चन जो शीट में मिल जाएगा उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली देख सकते हो, मतलब एक आध बार तो आप यूनिट चेक भी कर सकते हो, उसमें आप चेक कर सकते हो, इक्वेशन देख के सॉल्व भी कर सकते हो। सो डायरेक्टली हमको एक क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है कि जिसमें अपन को सॉल्व करना है। सर एक डाउट है, बोलो। सर वो k = 3/2 RT है ना, उसमें k सर = 3/2 RT, बिल्कुल। तो सर उसमें यूनिट्स अगर चेंज होंगे तो r का वैल्यू भी चेंज होगा क्या? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको सीजीएस में लोगे तो मैं r का वैल्यू भी सीजीएस में लेना पड़ेगा, फिर मुझे अर्ब्स में लेना पड़ेगा। ओके सर। और मुझे एक बात पता है कि इस इक्वेशन में r का वैल्यू मैं 1/12 कभी नहीं ले सकता, क्योंकि 1/12 तो एटमॉस्फेयर लीटर होता है, और मुझे जूल्स को फिर एटमॉस्फेयर लीटर में, काइनेटिक एनर्जी कभी एटमॉस्फेयर लीटर में नहीं होगा, वो जूल्स में ही होगा। या तो आप कन्वर्ट करोगे जूल्स को एटमॉस्फेयर लीटर। सो ये यूनिट्स होता है। अब हमें पढ़ना होता है कि इन अ गैस सैंपल ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम वेलोसिटी। किसी भी गैसियस सैंपल में सेम वेलोसिटीज नहीं होंगे सभी मॉलिक्यूल्स के। आप अगर चाहो तो अपन ऐसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं का छोटा मोटा, और अगर डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन मिलना है हमें जिसमें ये वैल्यूज गिवन होंगी, इनमें से कुछ एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फिर करने की जरूरत नहीं। और अगर आप कहोगे नहीं हम क्वेश्चन करना चाहेंगे तो मैं क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ। सर चलेगा, क्वेश्चन दे दीजिए। क्वेश्चन दे दूं? हाँ सर। हाँ तो फिर लिखो क्वेश्चन पे, अपन क्वेश्चन लिख के और एक क्वेश्चन सॉल्व कर भी सकते हैं भाई, ठीक है? तो चलो लिखो, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, इक्वेशन लिख लेते अपन, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 10⁻23 molecules, calculate the pressure exerted by 10⁻23 gas molecules, each of mass 10⁻23 molecule, each of mass 10⁻⁻25 kg, each of mass 10⁻⁻25 kg in a container of volume, in a container of volume of 1 decimeter cube, in a container of volume 1 decimeter cube. The velocity of the molecule is, the velocity of the molecule is, the velocity of the molecule is 1 kilometer per second. The velocity of the molecule is 1 kilometer per second. The velocity of the molecule is 1 kilometer per second. What is the final kinetic energy? What is the final kinetic energy of these molecules? What is the final kinetic energy of these molecules? First up. What is the temperature of the gas?
what is the temperature of the gas. Also calculate the velocity of the gas molecules. Also calculate the velocity of the gas molecules when the temperature is reduced to half. Also calculate the velocity of the gas molecules when the temperature is reduced to half of original temperature of the original value. Reduced to half of the original value. मैंने आपसे दो तीन चीजें पूछी. एक तो मैंने आपसे प्रेशर पूछ लिया, दूसरा मैंने आपसे टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, उसके बाद मैंने आपसे टेम्परेचर भी पूछ लिया, फिर वेलोसिटी भी पूछा है जब टेम्परेचर को आधा कर दें. चलो बताओ. सो इसमें बहुत सारी चीजें पूछी है, इसलिए पहले अपन लिख लेंगे डाटा क्या क्या गिवन है. सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द डाटा गिवन टू अस. हाँ बोलो. आप कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करना, बाकी सब ठीक है. किसी को डाउट है तो बोलो. एवरीबॉडी गॉट इट. अब ये तो अपन को एक पार्ट आया जो आपने प्रेशर पूछा था, तो मैंने पास्कल में कैलकुलेट किया और एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं. 33.1 या 2 एटमॉस्फेयर ऐसे आ जाएगा, क्योंकि 1 पास्कल इज इक्वल टू ये होता है अपने पास 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101325 पास्कल होता है. मैं इसको लिख सकता हूँ 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल कर सकता हूँ एटमॉस्फेयर. तो 10 की पावर 5 तो है उधर. अब इसको 1.01325 से अगर डिवाइड भी करेंगे तो 33.2 के आसपास आएगा. अपना आंसर. दूसरा मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. तो मैंने आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी. क्या मैं यहां से कुछ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बना सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, क्योंकि मेरे पास प्रेशर भी है और ये भी है, तो मैं ना ऐसे कर सकता हूँ. अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आई विल राइट दैट इट विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. मास ऑफ पार्टिकल तो अपन को पता है कितना होता है, राइट. यहां से अपन को टेम्परेचर तो गिवन नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि कितना होगा. सो m इसमें अपन लिखेंगे दैट इज मास ना ऑफ पार्टिकल, तो अपन काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं. तो इसमें मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, तो अपन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ऑफ गैस पार्टिकल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अपन को मास ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है और आपको वेलोसिटी भी गिवन है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए वो अपन बता देंगे. अब अगर अपन को टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 दैट इज RT. ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा अपने पास. लेकिन फिर अपने पास टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लो, बाद में आप टेम्परेचर बता दो. और अगर टेम्परेचर को हाफ करोगे तो अपन को पता है दोनों काइनेटिक एनर्जीज हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 RT विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो आपने कहा अगर मैं टेम्परेचर को हाफ करता हूं तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो ठीक है वेलोसिटी कैलकुलेट करके बता देंगे कितना हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को हाफ करोगे. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल है. अपन ने ये वन मॉलिक्यूल लिया, यहाँ वन मॉलिक्यूल का मास लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन मॉलिक्यूल, टेम्परेचर ऑफ वन मॉलिक्यूल, अपन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT क्या लिखते हैं अपन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स.
तो ये काइनेटिक एनर्जी जो आएगा ना वो एनर्जी जूल्स में आएगा अपने पास, तो अपन को 1 मोल के लिए आना चाहिए जूल्स। भाई अपन इसको काइनेटिक एनर्जी को जूल्स लिखेंगे ना, पर मोल होना चाहिए अपने पास, तो यहाँ मास तो केजी में आ गया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसको पर मोल में आना चाहिए अपने पास। तो 1 मोल के लिए अपन क्या करेंगे, m इंटू एन करेंगे। वो करना मत भूलना, क्योंकि यहां पर आप आर को पर मोल में लेने वाले हो, वो अगर गलती नहीं हुई अपन से तो फिर कोई गलती नहीं होगी अपन से। तो वो एनर्जी को एक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट नहीं करना जब तक आपसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ना कहा जाए, क्योंकि अपन को यहां पर क्या यूज करना होगा, 3/2 R2। आर क्या होता है, जूल्स पर मोल, आर एक गैस मॉलिक्यूल के लिए नहीं होता। तो अपन को यहां पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मुझे इसको भी पर मोल बनाना पड़ेगा, तो मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है, अपन को n भी गिवन है, m भी गिवन है, दोनों गिवन है। वो काइनेटिक एनर्जी अपन जूल्स में कैलकुलेट कर लेंगे m केस में, यहाँ कब सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब टेम्परेचर आ गया तो मैं सब्स्टिट्यूट कर ही देता हूँ, फिर मैं ये काइनेटिक एनर्जी अपने पास आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 मास ऑफ मॉलिक्यूल, मुझे 10⁻⁻25 गिवन है, 10⁻23 गिवन है, और वेलोसिटी मुझे गिवन है, दैट इज अपन को 10 की पावर, यहाँ पर वेलोसिटी अपन को गिवन था, दैट इज 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्वायर ये बताइए आप। अब इस काइनेटिक एनर्जी को लेके अपन क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी अपने पास आया 1/2 था, और ये 10⁻629, तो 4 बचेगा अपने पास, तो 1/2 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो अपन क्या करेंगे, 1/2 मतलब 0.5, सो 5 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया अपने पास। अब अपन यहाँ पर जूल्स आया अपने पास, जूल्स पर आया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी था ना, ये तो कैंसिल हो गया था, जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया, अब आप जूल्स में कन्वर्ट कर लो, ये 5000 हो गया जूल्स, 3/2 ये हो जाएगा 8.314, और ये जूल्स है इसलिए ये भी जूल्स है, और टी आ गया अपने पास। अब टी कैलकुलेट कर लिया, तो अपन इस वैल्यू से इसको इक्वेट कर देंगे भाई। अब इसमें भी अपन को सिंस एम एन वी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये भी आप जूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो एम एन वी स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको। तो यूनिट्स का ध्यान रखना, इस चैप्टर में जो भी आइडियल गैस वाले पार्ट में मेनली जो है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, वो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना होता है, तभी आपके आंसर सही होंगे। अगर आप यूनिट को ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपके आंसर सही नहीं होंगे, आपको लगेगा हमको कंसेप्ट नहीं आता, आपको कंसेप्ट आता है, आप यूनिट में गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बच्चे मतलब यूनिट में गड़बड़ करते हैं, कई बार उनको लगता है हमें नहीं आता, लेकिन वो यूनिट में गड़बड़ करके आंसर अपना गलत कर लेते हैं। तो दैट इज अबाउट द, वी कैन से दैट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में केटीजी वाले पार्ट में ऐसे कैलकुलेशंस अपन को आ सकते हैं। अब यहां से अपने पास टी आ गया था, टी विल बी इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो होता है 3 × 24 ऑलमोस्ट 25 होता है, तो अपने पास 400 केल्विन आ गया। अब 400 केल्विन आ गया, तो अपन ने कहा अगर टेम्परेचर को हाफ कर लें तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसमें ये तो कैंसिल कर लेते हैं अपन, सो 3RT, R इज 8.314, और अपन यहां से सीधा 3/2 RT ले सकते हैं, इतना ये 5000 आ रहा है अपने पास। तो अपन जो अपने पास 3/2 RT इज इक्वल टू 5000 है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, तो अपन इसको 3/2 RT अपने पास पता है ये 5000 है, तो आप इसको सीधा 1/2 कर लो, इनटू ये आपके पास मास 10⁻⁻25 10⁻23 इंटू वी स्क्वायर, 5000 हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल कर लेता हूं, 10 की पावर आपके पास -2 बचेगा, ये 10 की पावर -2 बचेगा आपके पास, तो इधर 1/2, तो इसको 2 को यहाँ मल्टीप्लाई, अब देख लेना आपने, डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पर 10 की पावर -2 कर लेता हूँ, विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी। ये मेरे पास 10,000 हो जाएगा, और 10,000 इसको 2 और ऐड कर लेता हूँ, सो 10,000 हो गया, 2 और ऐड कर लिया मैंने, वी स्क्वायर, तो 1 2 3 4 5 6,
10 की पावर 3 हो गया, सो v विल बी इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी पहले कितनी थी अपने पास? 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। तो अपन को क्या करना था इस बार? नहीं, अपन को एक बात उतना तो आएगा यार, वो तो कैलकुलेशन मैंने उसको लिखने के उसमें गड़बड़ कर दिया सब। मैंने एक गड़बड़ कर दी। उसने अपन से ये पूछा था कि अगर टेम्परेचर को हाफ कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? 3/2 R और ये अपन को 400 डिवाइड बाय 2 लेना पड़ेगा, मतलब 200 लेना पड़ेगा। तो 1/2 ये 2 कैंसिल नहीं करना है। चलो भाई आपने इंटू m हो गया अपने पास 10 टू द पावर ऑफ -25 10 की पावर 23 इंटू v स्क्वायर। सो r इज 8.3, ये तो 2 कैंसिल कर दिया मैंने, ये 200 हो जाएगा। सो मेरे पास आया दैट इज 400 इंटू 3r विल बी इक्वल टू 10 की पावर -2 इंटू v स्क्वायर। 3r इज ऑलमोस्ट नियरली 25, जैसे अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 3r इज ऑलमोस्ट 25। तो 3r 25 होगा तो 25 इंटू 4 है ना 100 होगा, 2 जीरो और लग जाएंगे और डिवाइड बाय 10 की पावर -2। 25 इंटू 400 क्या बना? सो 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100, 2 जीरो और है एंड दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर। तो अपने पास आया 2 जीरो और आया ऊपर। हाँ नहीं आ रहा यार सर वो 2 आपने लिखा ही नहीं। अच्छा ये वाला ना? 400 अपॉन 2। अच्छा ये 200 हो जाएगा। तो ये 200 हो जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 25 इंटू 2 10 होता है, नहीं 50 होता है। सो 5000 हो जाएगा, तो अपने पास 20 स्क्वायर आ जाएगा। तो 50 1 2 3 4 5 हो गया इज इक्वल टू 20 स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 5 50 ले लेता हूँ। 50 इंटू 10 के पावर -4 हो गया इंटू 4 हो जाएगा 20 स्क्वायर होगा। तो ठीक है, ये रूट लेंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा और 50 का रूट 7 हो जाएगा। 7.1 into 10 to the power of 2 meter per second. That is velocity. So v will be equal to 710 meter per second. लो भाई मेरे पास कैलकुलेशंस भी और यूनिट्स भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन क्वेश्चन इसमें इजी होते हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन और फॉर्मूले, कैलकुलेशन और यूनिट्स का ध्यान रखो तो फिर अपन से गलती नहीं होती है। Like that the questions will be there. मतलब अपन ने बहुत सारा पार्ट कर लिया इसमें, तो टेम्परेचर सब देख लिया क्या करना होता है। एक ही क्वेश्चन में अपन ने काफी सारे पार्ट को डिस्कस कर लिया। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सिंस वी से दैट कि भाई सभी गैस मॉलिक्यूल का एक जैसा वेलोसिटी थोड़ी होता है इन अ गैसियस सेक्टर। भाई किसी का वेलोसिटी कम होगा, किसी का वेलोसिटी ज्यादा होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, किसी का अगर वेलोसिटी कम है तो अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो एक गैसियस सैंपल में डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज हो सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, बट द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन सेम बिकॉज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन सेम। तो उसके लिए हमें एक गैसियस सैंपल में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है वेलोसिटीज का। जैसे मेरा मतलब यह है कि हमारे पास अगर एक वेसल है और उस वेसल में देयर आर 100 मॉलिक्यूल्स, तो ऑल 100 मॉलिक्यूल्स कैन नॉट हैव सेम वेलोसिटीज। तो कुछ वेलोसिटीज मतलब अपन क्या कहेंगे भाई, जैसे अपन कहेंगे कि भाई कुछ मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका वेलोसिटीज नियरली सेम होगा, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके वेलोसिटी नियरली सेम होंगे, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके नियरली वेलोसिटी सेम होंगे, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके वेलोसिटी सेम होंगे। तो हमें अलग अलग टाइप के वेलोसिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो किसी का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, किसी का वेलोसिटी कम होता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी विल रिमेन सेम बिकॉज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। उसको अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज।
That was given by Maxwell and Boltzmann. Distribution of velocities. That was explained by Maxwell and Boltzmann. It is explained by Maxwell Boltzmann. उन्होंने कहा a gaseous sample, जो भी हमारे पास एक गैस सैंपल लेते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट वेलोसिटीज हो सकते हैं. So we can write in words. And words में लिख सकते हैं कि what they want to say. वो क्या कहना चाहते हैं अपन words में लिख सकते हैं. At constant temperature, the total kinetic energy of gas sample, or we can say that gas mixture remains same. Because अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगा. In any gaseous mixture, the molecules are continuously in motion. Molecule are in continuous motion. So different molecules can have different velocities. Velocity. And after collision among them and with wall of container, they can change their velocity. Their velocities. So the kinetic energy. So their kinetic energy changes. अब पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे, वॉल ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कोलाइड करने के बाद उनके डायरेक्शन भी चेंज होंगे. अगर उनके डायरेक्शन चेंज होंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसी की बढ़ेगी तो किसी की कम हो जाएगी. But the average kinetic energy always remains same. But the total kinetic energy of the sample remains same. क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट remains at constant temperature. तो आप ये कह रहे हो कि एक गैसियस मिक्सचर है मेरे पास, इस मिक्सचर में ये जो पार्टिकल प्रेजेंट है ना, गैसियस मिक्सचर में ये पार्टिकल आपस में कोलाइड करके अपने वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहेगी. बट कोलाइड करने के बाद अगर किसी का वेलोसिटी बढ़ गया तो किसी का स्लो हो जाएगा, बिकॉज ये आपस में तो अपने काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सैंपल का काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ये सैंपल का काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम इफ द टेम्परेचर इज सेम. तो एक गैसियस सैंपल में पार्टिकल आपस में कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, तो आपस में कोलाइड करके अपने एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटीज चेंज हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैंपल विल ऑलवेज रिमेन सेम. दैट इज व्हाट दे से. The velocity of molecules can vary from
टू इन्फिनिटी। मैं ये नहीं बता सकता कि भाई किसका वेलोसिटी कम है और किसका वेलोसिटी ज्यादा है, वो वेरी कर सकता है। सो वी कैन हैव different type of velocities with the molecules, different type of velocity of the square with the gas, ये बता सकते हैं। That is we call it as a average velocity, root means square velocity, root means square velocity, root means square velocity, and most probable velocity, and most probable velocity। जनरली ये तीन तो अपन पढ़ते हैं वेलोसिटी। तो इस टाइप से वेलोसिटीज मॉलिक्यूल्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि भाई किसी का एवरेज वेलोसिटी जो है वो ओवरऑल मतलब क्या होना चाहिए, तो अपन बता सकते हैं। अब इट इज लाइक दिस, जैसे अपन लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी की बात, एवरेज वेलोसिटी, तो अपन क्या कहेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय एवरेज वेलोसिटी। तो अपन कहेंगे, सपोज करते हैं वी एवरेज अपन को लिखना है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, वी एवरेज विल बी इक्वल टू n1, एक सैंपल है मेरे पास, उस सैंपल में n1 मॉलिक्यूल्स के पास v1 वेलोसिटी है, n2 मॉलिक्यूल के पास v2 वेलोसिटी है, n3 मॉलिक्यूल के पास v3 वेलोसिटीज है। ऐसे अपन सम कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितना भी अपन को मॉलिक्यूल सैंपल में गिवन होगा वो टोटल कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी होगी। where n1 is, where we can write that n1 molecules process have v1 type velocity, n2 molecule have v2 velocity, n3 molecules have v3 velocity, और ऐसे ऐड करके अपन एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे टोटल नंबर से डिवाइड करके। ठीक है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज इसी को कहते हैं। दूसरा अपन लिख सकते हैं दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर वेलोसिटी, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अपन कहेंगे ठीक है, ऐसे वी आर एम एस लिख लेते हैं अपन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, दैट विल बी इक्वल टू मीन वेलोसिटी। वी नो दैट व्हाट इट इज, मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी, इसको अपन मीन वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इसको अपन मीन वेलोसिटी भी कहते हैं। हाँ, मीन मतलब एवरेज होता है, मीन एंड मीडियन आप पढ़े हुए हैं। सो आरएमएस वेलोसिटी होता है दैट इज, पहले अपन मीन वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज मीन वेलोसिटी, दिस इज मीन वेलोसिटी, इसको अपन मीन वेलोसिटी बोलेंगे। मीन स्क्वायर वेलोसिटी मीन दिस, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सो दिस इज मीन वेलोसिटी का स्क्वायर कर देते हैं तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसमें रूट भी लगा देते हैं। दिस इज व्हाट वी मीन बाय द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी।
सो अब ये कुछ ऐसे लगा जैसे आपने मतलब हमने बस वर्ड को बोला इसलिए आपने रूट मीन्स का वेलोसिटी बना दिया। Actually, root mean square velocity is a purely hypothetical velocity. It is purely a hypothetical velocity. इसको एक्सपेरिमेंटली अपन कैलकुलेट नहीं करते। Hypothetical velocity. It is the velocity of a gas molecule. It is the velocity of gas molecule when the total energy, kinetic energy of the gas sample. अपन ये velocity कैसे कैलकुलेट करते हैं? When the total energy of the gas sample, is equally distributed, जो possible नहीं है, equally distributed among all the gas particles, equally distributed among all the gas particles, the gas particles. लेकिन कैलकुलेशन के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मान लो टोटल काइनेटिक एनर्जी 10 किलो जूल्स है तो कितने पार्टिकल्स हैं? सबको इक्वली डिवाइड कर दो। अब कैलकुलेट कर लो कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। तो सबको इक्वली डिवाइड करके और जो कैलकुलेशंस करते हैं तो वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब अपन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैंपल is equally divided among all the molecules। फिर तो इसका मतलब है कि सभी गैस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी एक जैसा होगा, सभी का वेलोसिटी भी एक जैसा होगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर तो लिखा हुआ है कि वेलोसिटी तो 0 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई this velocity only depend on temperature, and is independent of pressure। कभी कभी अपन से पूछ लेते हैं भाई, it only depend on temperature because of the total kinetic energy, because the total energy, that is kinetic energy of the gas sample is equally distributed among the gas particles। तो ऐसा करना एक तरीके से हाइपोथेटिकली ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैस पार्टिकल के वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। इवन आफ्टर कोलाइजन भी वेलोसिटीज चेंज हो रहे हैं, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। तो अपन कह रहे हैं कि भाई देखो, इवन आफ्टर कोलाइजन अपन कह रहे हैं कि भाई गैस सैंपल का काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन पार्टिकल आपस में कोलाइड करके अपने वेलोसिटीज चेंज कर सकते हैं। तो अपने इंडिविजुअल पार्टिकल अपने काइनेटिक एनर्जी वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। एक और वेलोसिटी पढ़ते हैं, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब अपन क्या करेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये लिखा था ना, ऐसे PV 1/3 mn v स्क्वायर लिखा था ना। इन सभी कैलकुलेशन के लिए हमें हाइपोथेटिकल आरएमएस वेलोसिटी ही लेना होता है। तो इसमें जो वेलोसिटी लेते हैं वो जनरली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखते हैं। तो उस इक्वेशन में ना, जो इक्वेशन 1 लिखा था ना अपन ने, उसमें आप उस वेलोसिटी को आरएमएस वेलोसिटी करते हैं, वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से कैलकुलेशन करेंगे। मैंने वहां पर इसलिए नहीं लिखा था कि हमें पता ही नहीं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता क्या है, तो हम कैसे बताएंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में, इसलिए मैंने वहां पर वो लिखा नहीं था। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है द वेलोसिटी पॉसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द वेलोसिटी पॉसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स
is most of the velocity. अब ये वेलोसिटीज जनरली एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा बहुत इक्वेशन वगैरह से अपन कैलकुलेशन करके बता सकते हैं, लेकिन वेलोसिटीज जो होते हैं वो 0 से इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकता है। इसलिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने उसको एक कर्व के थ्रू अपन को एक्सप्लेन किया कि आप एक कर्व के थ्रू एक्सप्लेनेशन देख लो और उस कर्व में अपन से क्या क्या पूछ सकते हैं वो अपन देखेंगे। उसको अपन कहते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले आप ये लिख लो, फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ना उनके कर्व से अपन देख लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अपन को उस कर्व से ही मिल जाएगा, वन ऑप्शन या मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में, कि आप उस कर्व को समझा दो वेलोसिटीज के लिए, तो वो अपन को पूछ लें। तो अपन कर्व को ही समझ लेते हैं और उस कर्व में क्वेश्चन पूछ लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि इनके इक्वेशन का डेरिवेशन, क्योंकि ये इक्वेशन अपन ने जो यहां से लिखा हुआ है वो अलग होता है और डेरिवेशन भी अलग होता है। ये तो मैंने इन जनरल ना जो मतलब अपन छोटे क्लासेस में ऐसे पढ़ के बता सकते हैं उस टाइप से मैंने बताया। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। उन्होंने क्या किया कि कर्व के थ्रू अपन को एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज बताया। उन्होंने कहा आप यहां पर वेलोसिटी लिख लो और यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले आप ये लिख लो, उसके बाद क्योंकि इससे अपन को शायद फिजिक्स में क्वेश्चन आ सकता है, केमिस्ट्री में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, केमिस्ट्री में क्वेश्चन ग्राफ से आएगा। ये फिजिक्स का ही पार्ट है, वो केटीजी है ना फिजिक्स में, जैसे मैं बता रहा हूँ बात में फाइनाइट थ्योरी ऑफ गैसेस और फिजिक्स में भी पढ़ोगे। लेकिन अगर आपको ये आएगा तो आप फिजिक्स में और थोड़ा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको फ्लो ऑफ गैसेस तो पढ़ना ही पड़ेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लो ऑफ गैसेस में केटीजी पढ़ोगे आप, बट केमिस्ट्री में इतना ज्यादा नहीं है। केमिस्ट्री में सिर्फ थोड़े से ग्राफ को समझना है और छोटे छोटे कैलकुलेशंस करना है बस। व्हाट दिस इज दैट कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, सपोज अपने पास एक गैसियस सैंपल है, तो वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन अपन ऐसे कर लेते हैं, ग्राफ को ऐसे बना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहां से यहां मैं वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूं और यहां से यहां फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कर रहा हूं। मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखता रहूंगा कि भाई इसमें मैं क्या समझूं, इस ग्राफ में वही पॉइंट आपको भी समझना है। एरिया अंडर द ग्राफ, द कर्व रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस सैंपल, इन गैस मिक्सचर। ये आप सैंपल लिखते हैं, सैंपल में एक गैस भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। ये एरिया अंडर द ग्राफ अपन को पार्टिकल्स बता रहा है। इस लाइन पे अपन ने फ्रैक्शन ले रखा है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे अपन ने वेलोसिटी ले रखा है। यहां पर आप देख रहे हो तो इनिशियली वेलोसिटी थोड़ा कम बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस वेलोसिटी इंक्रीजेस। इसलिए अपन ने कहा कि वेलोसिटी जो है वो 0 से लेके कुछ भी हो सकता है इंफिनिटी। आपने यहां टच नहीं किया मतलब इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। velocity of molecules can vary from 0 to infinity, मतलब वो कुछ भी हो सकता है 0 to infinity वेलोसिटी। ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। There is very few molecules which has very low velocity or very high velocities. वेलोसिटी ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वेलोसिटी या तो बहुत कम है
या फिर बहुत ज्यादा है। तो वेलोसिटी पॉसेस्ड बाय, दिस इज द वेलोसिटी। तो अपन ने क्या किया, हमने इस ग्राफ में तीन रीजन चूज किए। तीनों रीजन में अपन ने चेक किया कि देखो भाई, एक रीजन तो ले लेते हैं अपन, तो अपन कहेंगे देखो जो इधर वेलोसिटी होगा ना पार्टिकल्स का, ऑलमोस्ट वही वेलोसिटी इसके आसपास भी रहा होगा ऑलमोस्ट। और एक वेलोसिटी अपन चूज कर लेते हैं यहां पर कि ये जो वेलोसिटी रहा होगा ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी रहा होगा। मतलब ये उधर, क्योंकि उससे ज्यादा वेलोसिटीज कैलकुलेट करना अपने लिए एक सैंपल में वो बहुत कम पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो यहां पर के आसपास अपन कैलकुलेट करें, ये पार्टिकल मैक्सिमम नंबर, मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस वेलोसिटी। So maximum fraction of molecules will have this velocity, and this is the fraction of molecules which are having this velocity. This is the fraction of molecules which are having this velocity. So इसको अपन बोलते हैं RMS velocity, the velocity possessed by molecule. The maximum velocity possessed by the molecule is called root mean square velocity. Whereas the velocity possessed by maximum number of molecules is most probable velocity. ये maximum velocity possessed by the molecule, this is the most probable velocity. और इसको अपन इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में कहीं भी लिख सकते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, इसका अपन दिया है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। जो मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी होती है व्हिच इज पॉजिटिव बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। द VMP इज द वेलोसिटी पॉजिटिव बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, विल राइट दैट। अब आप एक बार देख लो पहले, मैं इसको ना ऐसे भी समझा सकता है। देखो एक एक वो देखते हैं अपन कि मान लेते हैं अपने पास, पहले आप लिख लो फिर देखते हैं अपन क्या करना है। सर बोलो। सर ग्राफ में वो जो आपने वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर वाला कॉलम बनाया ना, हम्म, सर वो वाला पार्ट एक बार फिर से बताइए ना, मतलब वो क्या बताता है? कौन सा? सर रूट मीन स्क्वायर वाला, सर ग्राफ में वो जो कॉलम बनाया ना आपने। ये कॉलम भी बनाया अपन ने, तो रीजन बनाया, दिस इज द रीजन हाँ बट सर। वेलोसिटी। मतलब ये अपन ने अज्यूम कर रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा, मतलब अपन मैक्सिमम हाइट, मतलब ऐसे अज्यूम कर लें अपन कि ये वो पार्टिकल हैं जिनमें मतलब मैक्सिमम वेलोसिटीज है पार्टिकल्स में, क्योंकि इसके बाद वाला अगर अपन चेक करेंगे तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होंगे जिनके पास ये वेलोसिटी होगी, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होंगे जिनके पास ये वेलोसिटी है। तो ये वो वेलोसिटी होगी कि अपन कहेंगे द टोटल एनर्जी ऑफ द सैंपल इज डिवाइडेड इक्वली इन ऑल द पार्टिकल्स, तो ये वेलोसिटी आएगी। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एक तरीके से। और उससे ज्यादा भी वेलोसिटी हो सकता है, उससे ज्यादा भी वेलोसिटी हो सकता है, इट इज लाइक दैट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूं, मान लेते हैं अपन, आप पहले लिख लो फिर मैं बताऊं। पहले अपन लिख लो आप ये, मतलब वर्ड्स में, फिर मैं बता देता हूँ वो क्या है। सारी चीजें अच्छे से नोट करना। और
हो गया। देखो इनके अपन को इक्वेशंस तो याद ही रखनी पड़ेगी कि व्हाट आर द वैल्यूज ना, मतलब व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर आरएमएस वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ 3 RT/m होता है। इनके डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं। एवरेज वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 8 RT/πm और मोस्ट वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2 RT/m। ये फॉर्मूले तो अपन को याद ही रखने होते हैं। सो द डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज ना, वेलोसिटीज वो आप लिख सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज में वी आर एम एस अंडर रूट ऑफ 3 RT/m होता है। उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 PV/m, या फिर अंडर रूट ऑफ मास बाय वॉल्यूम, तो 3P/d भी लिख सकता हूं। d इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। d is the density of the gas। ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही आप v एवरेज भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? अंडर रूट ऑफ 8 RT/πm, अंडर रूट ऑफ 8 PV/πm, या फिर आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 8P/πd। ऐसे में v अपन इसलिए लिखते हैं इसको, वी नो दैट PV इज इक्वल टू होता है RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। इसलिए ऐसे लिखते हैं, PV को RT लिख रहे हैं अपन ऐसे। मोस्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 RT/m, अंडर रूट ऑफ 2 PV/m, या फिर अंडर रूट ऑफ 2P/d। और अगर अपन को रेशियो लिखना है बिटवीन दीज, बिकॉज सभी में RT गिवन है, सभी में M गिवन है, तो इसमें रूट ऑफ 3 आएगा, ये रूट ऑफ 8/π आएगा, और ये रूट ऑफ 2 आएगा। रेशियो ऑफ VRMS is to V average is to V most velocity। अब इसको देख के तो बता ही सकते हैं आप सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सा होता है, आरएमएस, फिर एवरेज, और सबसे कम मोस्ट वेलोसिटी होता है। 1:0.921 is to 0.864, 0.8164, ऐसे अपन लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। ये तो इक्वेशन है, बस एक बार इसको देख लेते हैं, अपन पॉइंट लिख लेते हैं जरूरत पड़ेगा तो। वैसे आरएमएस वेलोसिटी अपन इस इक्वेशन से ड्राइव भी कर सकते थे, तो मैंने, लेकिन उनका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है। डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन को डेरिवेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो अपन ने जैसे ये तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा था, तो दिस डिनोट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द टोटल मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो अपने पास ये गैसियस सैंपल था, अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जैसे ये टेम्परेचर T1 है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो व्हाट विल हैपन? वैसे तो अपन यहां से देख के बता सकते हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव आरएमएस वेलोसिटी, एंड द एवरेज वेलोसिटी दोनों से एवरेज ले लेके जाता है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर,
then the curve will become like this. अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कर्व ऐसा हो जाएगा. If we increase the temperature, the curve become like this. T2 is greater than T1. ये मुझे नहीं पता. T2 is greater than T1. If we increase the temperature, the curve become like this. तो अभी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होगा इट विल बी लाइक दिस. मतलब अब अपन अगर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी चेक करें तो इट विल बी लाइक दिस. मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. अब अगर अपन चेक करेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो क्या होगा वो देखते हैं. मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अगर अपन चेक करेंगे तो अब देख मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होगा ना दैट विल बी लाइक दिस. इधर अब ये हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल. दिस इज वीएम. पहले वीएमपी ये था इनिशियल. अब वीएमपी ये हो गया. अब वीआरएमएस ये हो जाएगा. अब वी एवरेज अपन यहां पे और अपन कहेंगे देखो टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटीज बढ़ेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे इनकी वेलोसिटीज भी बढ़ गई ना. इधर पहले तो नहीं थे यहां पर मॉलिक्यूल्स. अभी इनकी वेलोसिटी तो बढ़ गई. इधर जो मॉलिक्यूल्स थे जिनकी वेलोसिटी कम थी तो आगे शिफ्ट हो गए. तो अपन क्या लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर all type of velocity increases. Or velocity increases. But the fraction of molecule with different type of velocity, अब fraction क्या होंगे वो कम हो जाएंगे. With different type of velocity decreases. With different velocity decreases. Velocity decreases. तो fraction of molecules decrease हो गया, but number of molecules ना, the fraction of molecules था वो तो decrease हो गया. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो डिक्रीज हो गए सभी में, सभी केसेस में. ऑब्वियसली बात है बिकॉज एरिया अंडर द कर्व थोड़ी चेंज होगा. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे ना. द एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स सेम. एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स सेम. जो कर्व के अंदर एरिया है वो हमेशा सेम रहेगा. एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स सेम. वो चेंज नहीं होता. अब देख जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज है ना वो बिल्कुल वैसे ही है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज जैसे मान लेते हैं अपन अज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज को अपन एक सिंपल वर्ड में समझते हैं. ये पूरा पार्ट मेरे पास जब अपन 10th क्लास में थे ना तो देयर आर 100 स्टूडेंट इन द 10th क्लास. इन 10th क्लास अगर अपन 10th क्लास में अपने साथ वाले बच्चे देखेंगे ना तो सभी का हाइट ऑलमोस्ट एक जैसा होता है. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका हाइट कुछ ज्यादा ही होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनका हाइट कम होगा. बट एवरेज बच्चों का हाइट जो होगा ना वो ऑलमोस्ट एक जैसा होगा. मतलब अपन अज्यूम कर लेते हैं कि 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हाइट 150 सेंटीमीटर है और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हाइट 170 सेंटीमीटर है और 15 स्टूडेंट ऐसे हैं सपोज कर लेते हैं जिनका हाइट 130 सेंटीमीटर. वो थोड़े छोटे हैं.
तो इसको मैं बोलूंगा मोस्ट प्रोबेबल हाइट, इसको मैं बोलूंगा वीआरएमएस हाइट, और इसको मैं बोलूंगा दैट इज, ये जो काफी कम हो गया हाइट, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विल बी ईस्ट, तो इसको मैं बोलूंगा दैट विल बी द मिनिमम स्टूडेंट। और इसको अपन वीआरएमएस भी क्यों बोले हैं, अपन तो ऐसे बोल देंगे भाई ये मोस्ट प्रोबेबल हाइट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी द वीआरएमएस, इसलिए मैं सोच रहा था कि भाई मिनिमम फ्रैक्शन को वीआरएमएस, इसलिए मैंने उससे कहा वीआरएमएस हाइट ले लिया। तो इसको क्या लिखा है, ये भी उसी में आएगा, मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लो। सो ऐसे बहुत कम स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, ये ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनकी हाइट कम है। मैंने एक एवरेज लिया, आप इसको मतलब 10 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या इसको 12 ले लो, इसको 8 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंट वेलोसिटीज। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इसमें, तो अपन क्या करेंगे, 80 into 150, 5 into 170, 15 into 130 डिवाइड बाय 100 करके बता दूंगा व्हाट इज एवरेज। भाई ये तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हाइट दैट इज मोस्ट प्रोबेबल हाइट हमारे क्लास में। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट है जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट है जिनकी हाइट बहुत कम है। तो व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, तो अपन कहेंगे सभी की हाइट को ऐड करो, 80 into 150, 5 into 170, 15 into 130, सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 100 से, दिस इज द एवरेज हाइट, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द एवरेज हाइट। अब मान लो सभी स्टूडेंट 12th क्लास में चले गए, जब सभी स्टूडेंट 12th क्लास में जाते हैं तो अपन ने देखा, नाउ दीज 100 स्टूडेंट इन 12th क्लास, इन 12th क्लास, तो अब सबकी हाइट बढ़ेगी, इनकी भी हाइट बढ़ गई, जो 80 स्टूडेंट्स थे इनकी हाइट बढ़ गई, दैट इज 150 से 160 सेंटीमीटर हो गया। इनकी हाइट भी बढ़ गई, 5 स्टूडेंट जो थे उनकी हाइट मैक्सिमम बढ़ी तो 175 सेंटीमीटर हो गया, और जो 15 स्टूडेंट थे उनकी भी हाइट बढ़ गई, नाउ दे बिकम्स 150 सेंटीमीटर। टेम्परेचर बढ़ाने से सबकी हाइट बढ़ी और सबका फ्रैक्शन भी कम, फ्रैक्शन सबका कम होगा, क्योंकि अब हाइट जो स्टूडेंट यहां रहे होंगे हो सकता है उनका 150 आ जाए, मतलब जब हम 12th क्लास में जाएंगे तो सभी की हाइट बढ़ी, लेकिन जिनकी हाइट बहुत ज्यादा थी उनकी ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, जिनकी बहुत कम थी उनकी हाइट ज्यादा बढ़ी, और जिनकी एवरेज हाइट थी उनकी हाइट में भी चेंज तो आया लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो बिल्कुल वैसी वेलोसिटीज में आता है। नाउ अगेन व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल हाइट, वी नो दैट आरएमएस वेलोसिटी। व्हाट इज द एवरेज हाइट, तो अपन कहेंगे एवरेज का मतलब होता है 180 into 60, दैट 80 into 160, 5 into this, 15 into this, डिवाइड बाय 100, नाउ एवरेज हाइट बढ़ गया। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द पार्टिकल्स का, वैसे बिल्कुल पार्टिकल में होता है, इनिशियली अपने पास पार्टिकल का ऐसे बहुत कम पार्टिकल होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ऐसे बहुत कम होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है। आप और टेम्परेचर को बढ़ाओगे, मैं इसको और ऐसे करना शुरू कर दूंगा, आप कहोगे नहीं मैंने टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया, तो ठीक है, जीरो वेलोसिटी किसी की नहीं होगी, मैं ग्राफ यहां से शुरू कर दूंगा, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरीके से बिल्कुल वैसे ही है कि अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लें हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासेस, तो वेलोसिटीज भी बिल्कुल वैसे ही अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये एक जनरल अपन ने मतलब एक एग्जांपल ले लिया कि भाई ये सब चल क्या रहा है, इसमें मतलब हम क्या समझे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन अपन को पूछेंगे तो वो यहीं से पूछेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल इनमें से बनाएंगे। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप फिर गलती करोगे एक ही जगह, और वो क्या है, यूनिट्स। यूनिट्स। तो एक बार अपन यूनिट्स देख लेते हैं। अगर आप यूनिट में गलती नहीं करते हो तो गलती नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, यूनिट्स लिख लेता हूं एक बार, जैसे आरएमएस वेलोसिटी मैंने √3 RT/m लिखना है। मैंने आपसे कहा मैं सारे के सारे कैलकुलेशन किस में करूंगा, हम केस में। आर का वैल्यू कभी 0.081 नहीं हो सकता,
अंडर रूट ऑफ 3, आर ले लेता हूं 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर को मैं ले लेता हूं केल्विन में, डिवाइड बाय कर लेता हूं मोल्स पर केजी। ध्यान रखना मुझे पर केजी में लेना है। ये अपन ने उल्टा लिखा है भाई, एम के यूनिट में केजी होगा ना, अपन ग्राम पर मोल लेते हैं ना, तो केजी पर मोल लेना पड़ेगा भाई। ग्राम मोल्स पर केजी थोड़ी होता है, पर जब अपन मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं किसी का तो केजी पर मोल होता है या ग्राम पर मोल होता है, तो ऐसे लिखते हैं। चलो देख लेते हैं, गलती तो फिर भी करोगे कितना भी बता लो, देखते हैं। लेकिन कैंसिल हो गया, जूल्स को कन्वर्ट कर देता हूँ केजी, जूल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनर्जी को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप आइंस्टीन वाले इक्वेशन से भी कर सकते हो, लेकिन किसी से भी कर सकते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे क्या, जूल्स को लिखेंगे केजी में, तो इट विल बी जूल्स केजी लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर, वो भी रूट में। और जूल्स को अगर केजी में कन्वर्ट करूंगा तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय केजी, केजी तो कैंसिल हो गया, व्हाट आई गॉट मीटर पर सेकंड। हाँ, तो एमक्यू यूनिट में वेलोसिटी मीटर पर सेकंड ही तो होता है। Similarly, you can write for this. मैं इसको भी लिख लेता हूँ, अंडर रूट ऑफ पीवी अपॉन आर टी, पीवी अपॉन, मतलब एक बार प्रेशर वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर वेट इसमें भी ले लेता हूँ, प्रेशर वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर वेट इसमें भी ले लेता हूँ। मतलब आपने ये इक्वेशन भी लिखे तो इधर आर टी क्या लेना है और एम वो तो आपने बता दिया। एक बार पीवी वाला भी बता दो कैसे करना है। तो प्रेशर वॉल्यूम में प्रेशर को आपको पास्कल में लेना है, 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, ये केजी पर मोल होगा, ये होगा प्रेशर, ये 3 का है, वो तो कांस्टेंट होगा, अपन को पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब है, डिवाइडेड बाय मुझे केजी पर मोल लेना। अभी मुझे कन्वर्ट करना है क्योंकि वॉल्यूम मेरे पास, प्रेशर जो है वो तो पास्कल में आ गया, वॉल्यूम मेरे पास मीटर क्यूब में आ गया, और अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि न्यूटन को केजी में कैसे कन्वर्ट करूं, क्योंकि यहां से तो मेरे पास न्यूटन मीटर्स आएगा, तो केजी को कैसे कैसे कन्वर्ट करूं न्यूटन को केजी में, तो कुछ याद है अपन को? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई, ये होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर ना, राइट, यस सर, पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया मेरे पास मीटर क्यूब, और केजी को तो कैंसिल कर लूंगा, ये बताओ कैसे करें फिर, न्यूटन मीटर को कैसे कन्वर्ट करो? देखो भाई, एक बार कन्वर्जन चेक कर लो, और मोल का तो वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम लेंगे तो मीटर क्यूब पर मोल हो जाएगा, तो उस पर मोल तो अपन कैंसिल कर लेंगे, इसको मोलर वॉल्यूम लेके, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ले लेंगे अपन, और ले भी रहे हो आप डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट ले रहे हो और ये वॉल्यूम, तो डेंसिटी 1 मोल करेगा, क्योंकि डेंसिटी तो इंटर, डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा कितना भी अमाउंट ले, तो वो केजी वाला देख लो एक बार कितना आएगा, तो मैं अपना आंसर लिख दूं, अब केजी वाला चेक कर लो एक बार कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर को करो भाई, मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर को,
हो गया। ये पर मीटर बोला तुमने या मीटर बोला? तुमने पर मीटर बोला ना? हाँ सर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड पर, ये केजी पर मीटर होता है, ये केजी पर मीटर होता है। देखो एक बार कैलकुलेट करके। हाँ सर, वो पर मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट होके पर मीटर बच जाएगा। ठीक है, ये लगे, इसको मोलर वॉल्यूम अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये भी कैंसिल होगा, मीटर पर सेकंड आ गया। मैं इसको मोलर वॉल्यूम ले लेता हूँ, तो मास ऑफ मोलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर मास मोलर वॉल्यूम, तो मैं m क्यूब को ले लेता हूँ मीटर क्यूब पर मोल, ये मीटर क्यूब पर मोल है, मीटर क्यूब पर मोल मतलब मोलर वॉल्यूम ले लेता हूँ, तो कैंसिल हो जाएगा। ये लो भाई, हमें वेलोसिटीज को मीटर पर सेकंड में लिखना है, वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करना अच्छे से। तो मैं इसलिए थोड़ा सा वेट करके भाई क्या कैलकुलेट करना है तुमको। अब एक आध क्वेश्चन हो जाए तो अपन, अब मेरे ख्याल से आइडियल गैस वाला पार्ट जो है ना वो खत्म हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं ताकि आप वैल्यू सही सब्स्टिट्यूट करो। लिखो, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ, calculate the root mean square velocity of, calculate the root mean square velocity of oxygen, calculate the root mean square velocity of oxygen at 27 degrees centigrade, calculate the root mean square velocity of oxygen at 27 degrees centigrade। फटाफट सब्स्टिट्यूट करके बता दो, कैलकुलेट करके क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट करके और कैलकुलेट करके बता दो क्या आएगा। सब बताने के बाद भी तुम लोग गलती तो कर ही दोगे। लिखा, हाँ सर निकाला है, चेक करना है एक बार बराबर है क्या। ये सब्स्टिट्यूट किया ना, इससे सॉल्व करोगे ना? सर बोलो। सर लेकिन मॉलिक्यूलर मास का यूनिट यही रहेगा क्या? मॉलिक्यूलर मास तो सर वहाँ पर हमें केजी में लेना है ना, ये तो ग्राम पर मोल होगा। अच्छा, ये तो ग्राम पर मोल है ना, और हमें हाँ क्या सर, लेना था? केजी पर। केजी पर। केजी में तो 10 की पावर
3 से डिवाइड कर देंगे। लो भाई 10 की पावर 3 से Yes. तो ठीक है, हो गया। सर आप 153। ठीक है, अपन इसको लिख लेते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं और ये 25 इंटू 3 ऑलमोस्ट 75 हो जाएगा। 74 ले लेता हूँ, 74/32 इंटू 10 की पावर 5 आ गया मेरे पास। सेवेंटी फोर बाई 32 इंटू 5, मतलब ये कितना कर लें? इसको क्या करें अपन? 74/32 ना, 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 37/16 तो 32 और इसमें से कितना बच गया? 2.3 समथिंग। 5, 2.3 ना। हाँ सर, सर आगे भी जा रहे हैं लेकिन। 2 बच गया तो 2.31 इस टाइप से हो जाएगा। हाँ सर। तो फिर 23.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2.3 को ऐसे कर लेता हूं, ऐसे कर दूं। हाँ सर। तो 23 मतलब हो जाएगा 4 पॉइंट, अब इसको 4 क्यों 5 लेंगे तो 25 होता तो आराम से आ जाता ना। तो 5 मतलब 4.85 के आसपास आ रहा है, 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 485 मीटर पर सेकेंड। ये लो। अब एक तो यहां तुम गलती करते, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि वो गलती नहीं करना है यार, साफ साफ लिखा तो है। अब लिखने के बाद भी अगर गलती करोगे तो फिर मैं मतलब क्या बोलूं तुमको, बताओ। वो प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो प्रैक्टिस से आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर अपन कुछ कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करके, कुछ ये रेशियो वगैरह भाई थोड़ा याद करो, है ना, रेशियो वगैरह थोड़ा याद करो। ये भी कि कभी अब अगर मैं मान लो उसी का एवरेज पूछूंगा तो आप बस आरएमएस गिवन है, एवरेज इस रेशियो से कैलकुलेट कर देंगे अपन। अगर आप मोस्ट प्रोबेबल पूछोगे तो उसी से अपन कैलकुलेट कर देंगे रेशियो। So this is about the kinetic theory process. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपन डाउट्स करेंगे। सर डाउट्स मतलब कौन से ऑर्डर से, मतलब कौन सा